नहीं, मोबाइल के थ्रू तो सब ले रहे हैं मैडम। जो विलेजेस, हाँ, मोबाइल के थ्रू। वो जो ऐप है ना ज़ूम ऐप, हाँ, हाँ, तो वो कौन-सा ट्रेड है आपका? इंटीरियर डिज़ाइन, कुछ तो हो सकता होगा मैडम। जस्ट थिंक ऑफ समथिंग कि जैसे पेपर पे थोड़े नोट्स बना लिए या डायग्राम सिंपल बना के दिखा दिए, बिकॉज़ वन टीचर टूक द क्लास लाइक दैट। हाँ, मतलब समथिंग इफ यू कैन थिंक ऑफ, मतलब जैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके ओपन हो जाता है उसमें डिवाइस में। सो एनीथिंग व्हिच यू कैन थिंक ऑफ रियली हेल्प, बिकॉज़ अब हाँ जी। 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड मैडम, एक मिनट डेटाबेस अपना चेक कर रही हूँ। मोनिका चौधरी है कोई? मैडम व्हाट्स योर नेम? Monica. ना यार, मोनिका चौधरी मोनिका मैडम, आई मेड यू 1 सेकंड मैडम, जो ये मैम कौन है? मोनिका मैडम, मैं 1 सेकंड, एक्चुअली ना ये ऑनलाइन क्लास चल ही रही है। 1 सेकंड मैडम, मेरे को 2 मिनट दे दो आप जरा, मैं ये सॉर्ट आउट कर लूँ जरा यहाँ पे। उसमें भी होगा तेला में? इज फ्रॉम निमी। तेला में भी होगी? Hi, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैडम, मैंने आई मेड यू co-host here as you can see. So Yeah, you can share the screen and share any PPT if you have. yeah. And all the participants on mute mode so that आवाज तो कौन है इसमें? disturbance while you are taking the class. Your voice is cracking, ma'am. 1 second. हाँ कृष्णा, हो गया फिर? हो गया। Where is the option of sharing screen? I'm not getting it. Okay, okay, I got it. क्या होना बहन, बीमारी बढ़ती जा मेरे 6000 कंप्लीट लगा पहुंच लिया कड़ा 200 400 है करता हैं। Am I clear? Is my Yeah. voice clear? Okay. So what I'm going to do is I'm going to put everybody on mute mode so that there is no disturbance while you are taking the class. Okay. And you can go ahead with the presentation or the class, online class, and at the end we'll have a 10-minute question and answer round. In case students have any question to ask, and I'll go on mute mode and I'll put on mute, I'll put all the participants on mute, and it will be a forced mute. So even if you ask any question, they'll not be able to answer because they will. Okay. So you So will then, give me, so you will give me 10 minutes after I finish my this thing? yeah, I mean, once you finish, you can have 5 to 10 हेलो, minutes for question answer. एक बार बात में करो, एक बार तो ये खोल रखी थी क्लास लगा। So Okay. I'll put everybody on force mute. Force mute means Ah, yeah, that I know. Yeah. they'll not be able to unmute themselves. So what they'll have to do, if there's any question, they'll have to put it on chat window. There is a Yeah, chat window. okay. Okay. Yeah. So now I'm also going on mute. And yeah, so if you have any questions to me, then you'll have to put it on chat. Okay, no, I don't have any question as of now. I'll start with, and once I'll finish, just one question. Hello, ma'am. Yes, yes, yes. Yeah, I have only 1 hour, or like it can be extended. 1 hour precisely, because I have another meeting scheduled right after. Acha, so yeah, I'll try to finish it by 3. Sure. Yeah, sure. Okay. Okay, fine. Let me start. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone.
Today I am going to tell you about counseling and mentoring. It's a topic under training methodology. So हम सबको पता है काउंसलिंग और मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेनिंग में, और स्पेशली फॉर ट्रेनीज काउंसलिंग एंड मेंटरिंग फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट. So let us start. I'll start with the topics जो मैं कवर करूंगी आगे प्रेजेंटेशन में. Let us go through the topics. First one is counseling. हम देखेंगे काउंसलिंग होती क्या है, समझेंगे ये, और काउंसलिंग कैसे की जाती है. Then we'll go to mentoring. Mentoring क्या होती है, mentoring कैसे की जाती है, उसके benefits क्या हैं. Then grievances. What is grievance? Types of grievances और कुछ उसके examples. Then we'll see SWOT. SWOT क्या होता है, उसके bifurcation क्या है, और SWOT के कुछ examples देखेंगे, जैसे कि पर्सनल SWOT एनालिसिस कैसे की जाती है और एक बिजनेस SWOT एनालिसिस कैसे की जाती है. Then lastly we'll see कि करिकुलम VT कैसे बनाया जाता है, और एक डिफरेंस, एक स्लाइड में आप डिफरेंस देखेंगे कि एक गुड CV कैसा होता है और एक बैड CV कैसा होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा फ्यूचर में भी अपना एक बहुत अच्छा सा CV फॉर्मेट कर सकते हैं. और अभी तक अगर आप लोगों ने अपना CV बना लिया है तो उसमें जो भी अगर रिगार्डिंग चेंजेस करने पड़े तो आप कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. काउंसलिंग. काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग इज अ प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस एंड गाइडेंस in resolving personal or psychological problems, tackling the ups and downs and other issues that come along with living a healthy life. काउंसलिंग होती है जैसे अगर आप एक प्रोफेशनल असिस्टेंस का गाइडेंस अगर आपको किस चाहिए होता है, किसी स्टूडेंट को चाहिए होता है. अगर मैं सिर्फ ट्रेनिंग की बात करूं तो वो अपने ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग कोर्स अगर वो चाहता है कि कुछ उसको पर्सनल या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और उसके कुछ वर्क में कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, या उसके कुछ हेल्दी लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या उसको स्टडी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो एक गाइडेंस ले सकता है. दैट इज अ प्रोफेशनल गाइडेंस, ताकि उसको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा फील बेटर हो और अपना कंफर्टेबल वो फील करे और थोड़ा सिक्योर फील करे, एंड फील मोर सक्सेसफुल, फील मोर जॉयफुल, फील मोर कनेक्टेड टू अदर्स. एंड इस काउंसलिंग के थ्रू उसका थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है. You can identify the goals that you have in life as well as make new goals that you want to achieve. तो आप अपना जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं. सपोज आपको गाइडेंस नहीं मिली है कि 12th पास आउट करने के बाद आपको क्या करना है, तो आप किसी ऐसे प्रोफेशनल से मिल सकते हैं, वहां पे असिस्टेंस ले सकते हैं. तो आप उनको अपना पहले तो बैकग्राउंड बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन अभी तक की क्या रही है और आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फील्ड ऑफ स्किल आप किस फील्ड में डेवलप करना चाह रहे हैं. तो वो आप उनसे डिस्कस करके अपना एक गोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस गोल पे आप आगे बढ़ के अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं. Establish healthy and efficient ways and techniques for reaching your goals. तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपके आसपास भी, आपका मन भी लगेगा पढ़ने में, और आप उस गोल को पाने के लिए बहुत ही अच्छे से प्रयास करेंगे. एंड टेक्निक्स फॉर रीचिंग योर गोल्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ काउंसलिंग. काउंसलिंग अगर आप इस स्लाइड को देख रहे हैं तो इसमें ये बताया गया है कि काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग किसको दी जाती है? एक ग्रुप ऑफ पीपल को भी दिया जा सकता है, एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है. काउंसलिंग एक हेल्प की तरह एक्ट करता है, जिससे काउंसलिंग एक हेल्प की तरह भी एक्ट कर सकता है. काउंसलिंग एक प्रोफेशनल की तरह एक्ट करेगा आपके लिए, ताकि आपको एक स्टार बना सके या आपको अपने गोल तक पहुंचा सके. इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट टू एन इंडिविजुअल ऑल्सो. तो काउंसलिंग, अब काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा,
आपसे उस काउंसलिंग में आपके साथ एक कम्युनिकेशन होगा, एक हेल्दी डिस्कशन होगा, कम्युनिकेशन होगा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन एक साथ मिलेगी तो आपके स्किल्स में डेवलपमेंट होगी। So this is basically a flow chart, or you can see a pictographical this thing of counseling. So now coming to mentoring. What is mentoring? Mentoring is basically एक कोलैबोरेटिव स्टेप है जिसमें एक पार्टनर होता है और पार्टनरशिप होती है बिटवीन अ मेंटर और प्रोटीग, जो यहाँ पे लिखा है ना, बिटवीन अ मेंटर एंड अ प्रोटीग। मेंटर कौन होता है? मेंटर होता है हु पोजेसेस ग्रेट स्किल्स, जिसके पास स्किल्स होती है, नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस होती है, जो वो शेयर करता है अपने प्रोटीग के साथ। और प्रोटीग इज अ पर्सन हु इज लुकिंग टू इंक्रीज हिज और हर स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। प्रोटीग होता है जो मेंटरिंग के लिए जाता है, जिसको अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए या उसको अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे वो डिस्कस करे, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड मेंटर. So there is a partnership. Have you understood? There is a partnership between a mentor and a protege. This is a very important point you have to note. That's protege. This word is generally maybe MCQs में पूछा जाए कि who is a protege. So protege is a person who is looking to increase his or her skills, knowledge, and experience. So it's not a relationship between an employee and his or her immediate supervisor. ऐसा नहीं होता है कि ये एम्प्लॉय और उसके सुपरवाइजर का पार्टनरशिप है। इसमें क्या होती है, थोड़ी इनइक्वालिटी भी होती है स्किल्स में, थोड़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस की भी इनइक्वालिटी होती है। बट यहाँ पे मेंटरिंग में जो सामने आपको मेंटर कर रहा है वो उसके पास स्किल्स तो है, ऑब्वियस सी बात है, स्किल्स ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा, एक्सपीरियंस ज्यादा है, बट वो आपके लेवल पे आके, प्रोटीग के लेवल पे आके और उसके माइंडसेट को समझ के अपने उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और देन he or she solves the issue. Then protege, as I have already told, protege is the recipient of the mentor's guidance and must be committed to expanding his or her capabilities, be open and receptive to new ways of learning. So have you understood what is mentoring? It's a collaboration, it's a mutual beneficial partnership. दो लोगों के बीच का एक पार्टनरशिप होता है जिसमें एक मेंटर होता है, एक प्रोटीग होता है। तो मेंटर वो होता है जिसके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो जब प्रोटीग उसके पास जाता है या प्रोटीग उससे शेयर करता है तो वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करके उसको इम्प्रूव करते हैं। देन ही प्रोसीड्स कि उसे व्हाट इन विच डायरेक्शन ही और शी हैज टू गो। तो बेसिकली अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो मेंटर में हमारे कोचिंग्स आ जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स, द इनसाइट्स जो हम पढ़ते हैं, कुछ एक पर्सनल कुछ गाइडेंसेस होते हैं, तो वो हमारे जो जितने भी हैं वो मेंटरिंग में कवर होते हैं। So we can see mentoring has a goal, it has a direction, advice, it gives motivation, it is a kind of a coaching. मतलब mentoring क्या होती है, जैसे हम coaching लेते हैं तो that is also mentoring where we can exchange the knowledge की exchange होती है। there is a training जिसमें हम training पर जैसे हम बहुत सारी trainings attend करते हैं, that is also a kind of mentoring. it's a kind of support, जैसे हमने उसमें last slide में भी देखा, that is also for support. And finally it's a success story. So have you understood the mentoring? So if any question is there is a slot at the end of this lecture, so you can write down your questions right now and उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं. Now coming to the next slide, what is a grievance? What is a grievance? A real or imagined cause for complaints, especially unfair treatment
trainees grievance can be solved by identifying its counseling and proper motivation. ग्रीवांस होता है, एक शिकायत होती है जो कि किसी को उसका सामना करना पड़ता है शिकायत का, बट वो ग्रीवांस जब वो रेज करता है, वो शिकायत रेज करता है, तो उसका कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसका एक कोई आधार होना चाहिए कि वो किस बेसिस पे उसका वो शिकायत कर रहा है या वो कंप्लेन कर रहा है, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग, या अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, या मतलब पर्सनल ग्रीवांस भी हो सकती है. वी विल सी कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्रीवांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ए पर्सन रेजेस हिज वॉइस, हिज और हर वॉइस. तो ट्रेनी ग्रीवांस बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रेनी ग्रीवांसेस कैन बी सॉल्व बाय आइडेंटिफाइंग इट, काउंसलिंग एंड प्रॉपर मोटिवेशन. तो जो ट्रेनी का भी ग्रीवांस होता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज द प्रॉब्लम टू द रूट लेवल, कि वो जो बोल रहे हैं उनको हम प्रॉपर रूट लेवल तक आइडेंटिफाई करेंगे कि उससे रिलेटेड और कौन से इश्यूज हैं, फिर उसकी काउंसलिंग करेंगे. अगर ऑब्वियस ही बात है कि वो वैलिड होगा पॉइंट, लेकिन वो वैलिडिटी जानने के लिए हमें खुद उसकी वर्किंग करनी पड़ती है कि वो जो ग्रीवांस है वो उसका बेस क्या है. तो उस बेस तक जाना, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उस ट्रेनी के साथ बैठ के उसकी काउंसलिंग करना, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस देना या मोटिवेट करना. ठीक है, तो दिस इज हाउ एक ट्रेनी का ग्रीवांस हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी विल सी कि कौन कौन से ग्रीवांसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रीवांसेस. इंडिविजुअल ग्रीवांस, ग्रुप ग्रीवांस, पॉलिसी और यूनियन ग्रीवांस. सॉरी, सो इंडिविजुअल ग्रीवांस आपको वर्ड से क्लियर होगा. इंडिविजुअल ग्रीवांस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल की कंप्लेन होती है, वन एंड ओनली पर्सन की कंप्लेन होती है. As you can see, यहाँ पे मैंने लिखा है, an individual grievance is a complaint that an action by management has violated the rights of an individual as set out in the collective agreement or law, or by some unfair practice. For example, discipline, demotion, classification, disputes, denial of benefits. तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिविजुअल ग्रीवांस होते हैं, इंडिविजुअल के ग्रीवांस होते हैं, इंडिविजुअल की जो भी कंप्लेन होती है, और वो क्या हो सकती है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे उसको किसी को उसके डिसिप्लिन से प्रॉब्लम है, या उसका डिमोशन हो गया है तो वो ग्रीवांस, उसको प्रॉब्लम होगी तो वो अपना वॉइस रेज करेगा, या उसका किसी से झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो उसके रिगार्डिंग वो ग्रीवांस इशू रेज करेगा. डिनायल ऑफ बेनिफिट्स, या किसी को किसी चीज का बेनिफिट नहीं मिला, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बेनिफिट्स के, तो अगर नहीं मिला, उसको उससे वंचित रखा गया, तो उसके जब उसे पता चला तो उसे लगा कि हाँ मुझे ये चीज नहीं मिली, तो उसके लिए उसने अपने मैनेजमेंट से ग्रीवांस रेज किया. तो ये जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे करता है, दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल ग्रीवांस. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू ग्रुप ग्रीवांस. अभी ग्रुप वर्ड से क्लियर हो रहा है, ये ग्रुप ग्रीवांस. ग्रुप मतलब a cluster of many people. जहां हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे वहां पे एक सिंगल पर्सन था, ग्रुप में बहुत सारे पर्सन होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा हम ये देखते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होता है, तो एम्प्लॉयर ने कोई इशू रेज किया या कुछ उसने बोला, तो एम्प्लॉयर ने किसी और ढंग से समझ लिया उसे, या उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो गया उस ऑर्डर का, तो वो जब इशू बनता है, सो दैट कम्स अंडर ग्रीवांस ओनली. और जैसे अगर हम ट्रेनी की बात करें तो बहुत सारे जैसे हम एज अ ट्रेनर हमने कुछ बोला उनको, एनीथिंग, बट उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर लिया, ट्रेनी ने मिस इंटरप्रेट कर लिया, तो अब वो सारे ट्रेनीज मिलके आएंगे आपस में ग्रुप बना के और बोलेंगे कि मैम ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या करें क्या ना करें. तो फिर हम वो प्रॉब्लम लेके जाएंगे, पहले तो अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या इशू है, उसके बेस को समझेंगे, उसकी वैलिडिटी को समझेंगे, उसके रूट लेवल को समझेंगे, फिर देन उसके अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट किया जाएगा. अगर फिर भी इशू नहीं सॉल्व होता है, देन वी गो टू द मैनेजमेंट से अपनी बात रखेंगे, फिर उनको भी बोलेंगे कि वो भी अपनी पॉइंट्स को वहां पे क्लियर करें मैनेजमेंट के सामने. तो दिस इज हाउ इज अ ग्रुप ग्रीवांस.
So next is policy और union grievance. This is very common जो हम देखते भी आ रहे हैं. Policy और union grievance में group होता है, but there is a जो group है that is a group जो कि management ने वो group बनाया होता है. जैसे बहुत सारे यूनियंस होते हैं, हम कंपनीज में देखते हैं, फैक्ट्रीज और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो अपना यूनियन बनाते हैं, मतलब किसी एक अपने लीडर को चूज करके. तो अब वो जब यूनियन कोई ग्रीवेंस रेज करती है तो वो मैनेजमेंट एक्शन लेता है उस पे. तो वो अपना फिर अपना जो ग्रीवेंस है वो मैनेजमेंट के पास लेके जाते हैं. इसमें बहुत सारे ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का इंटरप्रिटेशन, जैसे उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट बना मैनेजमेंट के साथ, वो मिस इंटरप्रेट हुआ, या सडनली मैनेजमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि फॉर एनी रीजन. तो ये सारे ग्रीवेंसेस होंगे अंडर पॉलिसी और यूनियन ग्रीवेंस. तो नीचे हम ये एक सिस्टम देख रहे हैं. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड अ जनरल एड्रेसल सिस्टम कि कैसे ग्रीवेंस रेज होता है. और फिर जस्ट अ मिनट. सो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में यहाँ पे हम देख रहे हैं इनपुट रिसीव फ्रॉम सिटीजन और कस्टमर. कोई भी अगर ग्रीवेंस किसी को रेज करना है तो वो पहले अब तो अपना इनपुट देगा. तो बहुत सारे, अगर हम अपने एज अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन की बात करते हैं, तो हमारा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है. तो वहां पे जाके हम अपना ग्रीवेंस शेयर कर सकते हैं एज अ सिटीजन, और एज अ कस्टमर भी कर सकते हैं. देन जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं वो जो जिन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं उनके एग्जीक्यूटिव्स के पास वो ग्रीवेंस जाता है. ठीक है. अगर वो इफ दे आर एबल टू सॉल्व, सो उसका एक्शन वो लेते हैं. अगर वो डिले होता है एक्शन में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इफ देयर इज अ डिले इन एक्शन, जिनको मिला है रेलेवेंट एग्जीक्यूटिव्स को, अगर वो नहीं कर पाते हैं या डिले इन एक्शन होता है, सो it is then escalated to senior executives. Okay, then coming to, अगर वो एक्शन हो जाता है तो फिर उसके बाद वो ग्रीवेंस का स्टेप जो है, जस्ट अ मिनट. तो वो जो एक्शन टेकन होता है यहाँ पे, वो उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ एक्शन ले लिया गया है. और जो भी जिसने भी ग्रीवेंस रेज किया होता है वो अपने ग्रीवेंस को फर्दर, उससे जब वो ग्रीवेंस डालता है तो उसे एक्नॉलेजमेंट नंबर या कोई ट्रैकिंग या रेफरेंस आईडी मिल जाती है, जिससे वो उसका स्टेटस चेक करता रहता है. जैसे हम लोग ITR सॉरी मतलब एक है जिसमें हम फाइल करते हैं, जिसमें अपना ग्रीवेंस लिखते हैं, RTI. तो उसमें हमें एक एक्नॉलेजमेंट या ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, जिससे हम उसका स्टेटस चेक करते हैं कि कैसे कैसे वो चीज किस किस लेवल तक पहुंची है और उसका स्टेटस क्या है. तो वंस इट इज डन, तो मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो ग्रीवेंस सॉल्व हो गया है. देन ग्रीवेंस, जैसे अगर हम रिपोर्टर, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि ग्रीवेंस जो भी सॉल्व होता है दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो जो अगर रिपोर्ट्स या स्टैट्स या कुछ बेस अगर होता है, कुछ डेटा होता है, डेटा के बेस के अकॉर्डिंग हमें ग्रीवेंस सॉल्व करना चाहिए, ना कि जस्ट ऑन सिर्फ हमें कोई न्यूज लेटर पढ़ के या कोई आर्टिकल रिफर करके या कोई और सेम सिचुएशन की चीज रिफर करके हमें नहीं देखना चाहिए. वी शुड गो इन डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रीवेंस. ओके. So we have discussed individual grievance, group grievance, policy or union grievance, and about the grievance redressal system. So 3 टाइप के grievances है, individual, group, policy और union. और ये मैंने आपको बताया कि ग्रीवेंस कैसे आगे बढ़ता है, कैसे उसका इनपुट लिया जाता है, कैसे आगे बढ़ता है, और फिर फाइनली कैसे उसका स्टेटस चेक होता है. So now coming to SWOT. What is SWOT? SWOT is basically SWOT. S stands for strengths, W stands for weaknesses,
O stand for opportunities, T stand for threats. तो strengths होती हैं बेसिकली SWOT की अगर हम डेफिनेशन देखें तो SWOT is an analysis or a matrix is a structured planning method used to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats involved in a project or in a business venture. तो बेसिकली अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी बिजनेस की को स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें स्वॉट एनालिसिस जरूर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स आगे मेंशन किए हैं, एक तो पर्सनल स्वॉट एनालिसिस है और एक बिजनेस स्वॉट एनालिसिस है. तो बेसिकली अभी हम जान लें कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है. यहाँ पे एरियाज यू डू वेल और एडवांटेजेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. तो स्ट्रेंथ में आ जाएंगे जो भी आपके एरियाज हैं जिसमें आपको लगता है कि यू आर हैविंग कमांड, जो कमांड है आपकी वो, एंड जो आपकी एडवांटेजेस हैं उसको आप मेंशन करेंगे स्ट्रेंथ में, राइट. एंड कमिंग टू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज वो है जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, जो आपने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया है बट यू हैव इन योर दिस थिंग, एंड आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को देके और स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने आप को भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी जिसके साथ भी आप वर्क कर रहे हैं. वीकनेसेस वो होती हैं जो ऐसे एरियाज होते हैं जो कि आपको लगता है कि आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपके अंदर अभी उतनी इम्प्रूव्ड वे में नहीं है और आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और करना चाहते हैं. थ्रेट्स होते हैं, threats, they are potential problems, risks caused by external factors that your organization may face. बेसिकली अगर हम पर्सनल थ्रेट्स की बात करें तो पर्सनल में जो आपके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको लगता है कि आप इस चीज से डरते हैं या आपको करने में इशू है, जो है कुछ शाइनेस है अंदर कि हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो बट वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल या करियर में आपके ना प्रॉब्लम बन सकता है, तो वो आपके लिए थ्रेट होगा. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस और थ्रेट्स क्या है? ओके, वील डिस्कस एट द एंड. किसी को कोई इश्यू होगा तो हम लास्ट में क्वेश्चनेयर होगा, वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा. तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, नाउ फॉरवर्डिंग. आगे हम बढ़ते हैं. स्वॉट एनालिसिस कैन बी कैरीड आउट. स्वॉट एनालिसिस एक प्रोडक्ट के लिए कैरी कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए. जैसे सपोज हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल मार्केट में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हम टीवी पे देखते हैं, बट उनकी जो सक्सेस है वो या नहीं है, तो हर मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट टीम होती है उसकी ना, वो हर प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस जरूर करती है. फॉर एग्जाम्पल एज आई एम एन आर्किटेक्ट, सो जो भी मैं प्रोजेक्ट करती हूँ या मैंने पास्ट ईयर्स में किए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्लब का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो क्लब का प्रोजेक्ट अगर मैंने स्टार्ट किया है तो उसमें जो भी एक्टिविटीज उस क्लब में होंगी, तो पहले तो उसका एनालिसिस करना होगा कि जो मैं एक्टिविटीज उस क्लब में इंकॉर्पोरेट कर रही हूँ वो सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी. अगर मैंने उसमें ओल्ड एज रूम नहीं दिया है या उनके खेलने के लिए कोई जगह उस क्लब में प्रोवाइड नहीं की है, तो वो मेरे लिए थ्रेट हो सकता है कि वो क्लब सक्सेसफुल ना हो. तो बहुत सारे ऐसे सर्वेज करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है लोगों से करने पड़ते हैं या करने पड़ते थे, और मैंने किए भी, जिसमें मुझे पता चला कि हाँ ये पॉइंट्स, ये अगर मैं फंक्शंस इसमें इस क्लब में दूंगी तो ये मेरे स्ट्रेंथ होंगे, और ये वीकनेसेस हो सकते हैं इस क्लब की, तो वो मुझे आगे जाके इम्प्रूव करने हैं. ओके, सो इट इन्वॉल्व It involves specifying the objective of the business venture or project and identifying the internal and external factors that are favorable and unfavorable to achieve the objective. For example, strength में जैसे communication है, self confidence है, financial background है, no bad habits. तो ये अगर आप self की बात कर रहे हैं तो ये आपके strength में count होंगे. ठीक है, जो भी आपके good points हैं, and that is good to the society as well. वीकनेस में आएंगे ओवर कॉन्फिडेंस, सीरियसनेस,
टिट फॉर टैट, फॉर जनरल नॉलेज अपॉर्चुनिटीज, तो ये सारे आपके वीकनेसेस, ये सारे वीकनेसेस में काउंट होते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे जो मैंने इस वाले स्लाइड में आपको शो किया है, अ पर्सनल स्वॉट एनालिसिस. तो पर्सनल स्वॉट एनालिसिस में हम बात करें तो स्ट्रेंथ में आएगा व्हाट एम आई ग्रेट एट. तो हमें अपने आप को देखना है कि हम किस चीज में ग्रेट हैं. तो वो सारे पॉइंट्स हमें, जो की वर्ड्स हैं उसके, वो हमें सारे स्ट्रेंथ में मेंशन करने हैं. देन वीकनेसेस में हमें मेंशन करने हैं हाउ कैन आई इम्प्रूव, व्हाट डू आई नीड टू वर्क ऑन. तो वीकनेसेस वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम अपनी इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं और जिसमें हमें वर्क करना है कंटिन्यूअसली सो दैट इट कैन बी इम्प्रूव. नाउ अपॉर्चुनिटीज, हु और व्हाट कैन हेल्प मी. तो इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं कि ऐसी चीजें जो मुझे हेल्प करेंगी आगे, मुझे आगे ले जाने में, मुझे आगे सक्सेस दिलाने में. थ्रेट्स में आ जाएंगी. थ्रेट्स, व्हाट इज स्टैंडिंग इन द वे. जो भी व्हाट इज स्टैंडिंग इन द वे इस कौन सा वे है यहाँ पे आपका सक्सेस वाला वे बताया जा रहा है कि आपको सक्सेस दिलाने में या आपको अचीवमेंट दिलाने में, आपके गोल तक आपको पहुंचाने में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको वहां तक ले जाने में रोक रही हैं. ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी है. तो और आइडेंटिफाई करके आपको उसको इम्प्रूव करना है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल जो भी ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो एक स्वॉट एनालिसिस आप अपने लिए करिए जिसमें आप मेंशन करिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके थ्रेट क्या है, और फिर आप अपने आप से वो चीज इम्प्रूव करिए या किसी की हेल्प लेके वो चीज करिए. जैसे मैंने अपनी ट्रेनीज को भी ये चीज बोली थी कि वो एक पर्सनल स्वॉट एनालिसिस जरूर करें, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो डिस्कस नहीं करते हैं किसी से, बट एटलीस्ट यू शुड बी फेयर विद योरसेल्फ. आप अपने आप से फेयर रहेंगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, आपके पर्सनल अचीवमेंट में हेल्प करेगा, आपके करियर में हेल्प करेगा. ओके, सो इन दिस स्लाइड आई हैव अगेन मेंशन्ड कि स्ट्रेंथ में और क्या क्या हो सकती है. जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी स्ट्रेंथ है. ठीक है, वीकनेसेस में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. सो नाउ कमिंग टू दिस स्वॉट एनालिसिस ऑफ बिजनेस. अब एक बिजनेस को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका स्वॉट एनालिसिस क्या, ये स्टार्टिंग वाला है कि स्टार्टिंग अगर हम कोई बिजनेस करें तो कैसे हम उसका स्वॉट एनालिसिस करके उसमें चीजें, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसको हम आगे देख सकते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेंथ में आ जाएगा थिंग्स योर कंपनी डज वेल. ठीक है, तो आपको बताना होगा कि आपकी कंपनी किस चीज में परफेक्ट है, जो वो कौन से ऐसे काम है जो वो अच्छे तरीके से करते हैं. क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. ऐसे कौन से हाइलाइट्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं. क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, इफेक्टिव पॉइंट्स होते हैं जो कॉमन हो सकते हैं, बट व्हाट इज दैट स्पार्क, वो आपको मेंशन करना जरूरी है. इंटरनल सोर्सेज सच एज स्किल्स, नॉलेजेबल स्टाफ. तो आपके जो कंपनी है उसमें नॉलेजेबल स्टाफ कितना है, उसमें स्किल्ड स्टाफ कितना है, उसके रिसोर्सेज क्या, उसके बारे में आप बता सकते हैं. दैट बिकॉज दे आर योर स्ट्रेंथ ओनली. एक कंपनी को सेटअप करने के लिए, एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए वो ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स. तो आप उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे उसमें. The tangible assets, that is intellectual property, capital, proprietorship, ये आपके पास कितना है. But you should, if you want, you can disclose your this thing, capital या प्रॉपर्टी कितनी है, बट स्टिल यू कैन गिव अ जिस्ट. आप एक जिस्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं कि एक कंपनी है, आपकी कंपनी है या कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर ये इंटेलेक्चुअल एसेट्स हैं. देन योर वीकनेसेस, थिंग्स योर कंपनी लैक, जिसमें भी लैक करती है वो आपको मेंशन करना है. थिंग्स योर कॉम्पिटिटर्स डू बेटर देन यू. अगर आपको लगता है किसी चीज में आपके कॉम्पिटिटर्स बेटर है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे बेटर जानते हैं या करते आ रहे हैं.
देन इट इज राइटिंग रिसोर्स लिमिटेशन. रिसोर्स की अगर आपको लगता है कि हमारे पास रिसोर्स की लिमिटेशन है एंड यू नीड मोर रिसोर्स ताकि आपका बिजनेस और अच्छे से चले, तो यू कैन मेंशन दैट. देन यूनिक अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. तो और अगर आपको अपने बिजनेस में लगता है कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सेल करने में क्लियर नहीं है आपको, तो उन चीजों को आपको मेंशन करना जरूरी है. अपॉर्चुनिटीज इज अनडिजर्व मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट. अपॉर्चुनिटीज इज की जहाँ पे उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग अभी तक नहीं हुई है, बट उस प्रोडक्ट की डिमांड या उस बिजनेस की डिमांड सेटअप करने में उस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चीज देखनी है एंड वहां पे उसको सेटअप करना है. सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी. और उस एरिया में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. इमर्जिंग नीड फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि आपके जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है उसकी और फ्यूचर की नीड्स क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में बढ़ेगी या और कौन सी ऐसे सराउंडिंग्स में. ऐसे तो नहीं है कि सेम बिजनेस और सेटअप हो रहा है, बिकॉज दैट कैन इफेक्ट आपको आपका बिजनेस उससे भी इफेक्ट होगा. या प्रेस या मीडिया का कवरेज है आपकी कंपनी पे, या मतलब कब प्रेस और मीडिया आपको देख रही है या समझ रही है, उसको कवर करिए. बिकॉज एडवर्टीजमेंट अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट ही मेन प्लेटफॉर्म होता है. थ्रेट्स क्या है? इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स एज ऑलरेडी से. चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरमेंट. थ्रेट्स क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, या लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज भी बहुत सारे रूल्स हैं जो चेंज करते हैं, तो वो हमारे थ्रेट्स हो सकते हैं, बट स्टिल वी शुड नॉट उनसे वरी नहीं होना चाहिए. नेगेटिव प्रेस और मीडिया कवरेज. अगर नेगेटिव, जैसे यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी लिख रहे हैं कि प्रेस या मीडिया कवरेज होना चाहिए बस, लेकिन वो नेगेटिव प्रेस या मीडिया कवरेज नहीं होना चाहिए, उस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए. चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स योर कंपनी. अगर कोई भी इशू होता है आपके बिजनेस के साथ, तो कस्टमर का एटीट्यूड बहुत जल्दी चेंज होता है मार्केट में. अगर आपने भी कोई प्रोडक्ट यूज किया हो और फर्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया हो, तो ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट हमारा रिएक्शन होता है, ओ माय गॉड ये कैसा था, इसको तो हम नेक्स्ट टाइम से नहीं लेंगे. तो वहीं पे ही उसका एक कस्टमर डिक्रीज हो जाता है. So this we have to understand कि what is the attitude of customer. Okay, so this was SWOT analysis of business. Earlier I have shown you कि SWOT analysis, personal SWOT analysis कैसे करना चाहिए, और आप सबको भी अपना एक SWOT analysis, personal SWOT analysis करना चाहिए. Now coming to CV. Now what are the techniques of writing good CV? हम CV is a curriculum vitae. हम सबको पता है, हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी कहीं तो जॉब रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि अपना CV या तो मेल कर दो या अपने साथ ले जाओ, ताकि वो वहां पे देख सके, आपसे कुछ पूछे बिना आपके बारे में जान सके. मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने क्वेश्चंस प्लीज नोट कर लीजिए. इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आप सबकी क्वेरी सॉल्व करूंगी. When it comes to applying for a new job, your CV could be just the ticket to get you the initial foot in the door and secure an interview. ठीक है, तो आपका CV ही आपका मिरर होता है, ये कहा जाता है. तो your mirror, you want your mirror should be clean, should be neat and tidy, and it should not have blots. तो हमें ये समझना है कि हमारा CV हमारा मिरर है, हमारा एक इनिशियल टिकट है कि हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज CV. So preparing a successful CV is easy once you know how. It's a case of talking all your skills and experience and tailoring them to the job you are applying for. एक सक्सेसफुल CV बनाना भी एक स्किल है, इट इज एन एक्सपीरियंस, एंड उसको पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कराना, बिकॉज एवरी जॉब हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑफ CV. तो द बेसिक फॉर्मेट इज ऑब्वियसली द सेम, बट कुछ ऐसे फॉर्मेट्स, कुछ ऐसे उसमें हेडिंग्स होती हैं जो हर जॉब के लिए हर CV में बदल जाएगी. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है एक इम्पॉर्टेंट CV बनाने के लिए.
So following are some of the important techniques of preparing a good CV. First is common points to be covered in the CV. जो हमें common points cover करने हैं वो है personal and contact information. मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे उसे लिखा जाता है. What is the actual format? अभी हम ये समझते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए. सबसे पहले तो हमें उसमें कॉमन पॉइंट्स क्या क्या रखने हैं. दैट इज पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, वर्क हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस, relevant skills to the job, own interests, achievements and some references. तो हमारी पर्सनल और कुछ कॉमन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डालनी है, उसमें लिखनी है. एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उसमें लिखना है आपको. कुछ वर्क हिस्ट्री, आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप उसको प्रॉपर्ली मेंशन करना है. कुछ और अगर एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास हैं उस जॉब से रिलेटेड तो दैट यू हैव टू मेंशन. एंड यू हैव टू मेंशन योर इंटरेस्ट, बट नॉट द अनलाइकली जो बहुत कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो नहीं लिखना. दैट आई विल टेल यू कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं. प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन इज की. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास सारा डेटा है कि आपको सीवी में क्या क्या लिखना है, बट आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो वो सारी जितनी आपकी मेहनत है सब बेकार चली जाएगी. A successful CV is always carefully and clearly presented and printed on clean, crisp, white paper. The layout should always be clean and well structured. Okay, that I'll tell you how. Stick it to 2 pages of A4 sheet only. A good CV is clear, concise and जो भी necessary points होते हैं वो ही उसमें mention करने हैं. कुछ भी paragraph ऐसा नहीं, पैराग्राफ में नहीं करना चाहिए. शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड प्रिपेयर. पहले आपको तो ये समझना है आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं. उस जॉब की क्योंकि ऑलरेडी जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो उस जॉब की एप्लीकेशन उसका जो पूरा फॉर्मेट होता है वो हम पढ़ चुके होते हैं कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है. तो हम स्टार्टिंग से अगर फिनिश तक हमने उसे पढ़ लिया तो हमें पता है, हम उसके नोट्स बना लें कि हाँ उस जॉब में ये रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड हमारे अंदर क्या क्या स्किल है या क्या क्या क्वालिटीज हैं वो हम उस अपने सीवी में मेंशन करेंगे. टेलर द सीवी टू द रोल, बिकॉज जो भी जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम अपना सीवी अप्लाई कर रहे हैं, सीवी हम दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रोल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें मेंशन करनी है. मेकिंग द मोस्ट ऑफ स्किल्स, इट सेज कि हमें बहुत सारे स्किल्स जो हम हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, लाइक की स्किल्स जो है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, टीम वर्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इवन स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज एन एडिशनल एडवांटेज. तो वो हम अपने स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं. इंक्लूड एनीथिंग दैट शोज हाउ डाइवर्स. कुछ ऐसे इंटरेस्ट हमें उसमें मेंशन करने हैं जो मैंने अभी बात किया था कि कौन कौन से इंटरेस्ट होने चाहिए जो कि बहुत डाइवर्स हो, जो कॉमन ना हो. जैसे कॉमन इंटरेस्ट हम जनरली देखते हैं, कोई भी सीवी होता है तो उसमें लिखा रहता है वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक. दिस इज कंसिडर्ड वेरी कॉमन एंड नॉट डाइवर्स. तो हमें ऐसे बहुत इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट ऐसे मेंशन करने हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर है, बहुत ही important and that's not common, तो वो मेंशन करना है. Making the most of experience, use assertive and positive language. जो भी हमें लैंग्वेज यूज करनी है should be very positive under the work history and experience session such as develop. ये सारे कुछ कीवर्ड्स है सीवी के जो हमें अपने सीवी बनाने के टाइम में यूज करना चाहिए. दैट इज डेवलप, ऑर्गेनाइज और अचीव. Concentrate on your achievements, not on your responsibility. जो आपके अचीवमेंट्स है, जो आपने अभी तक अचीव किए हैं, जो आपने अभी तक लिया है, समझा है या आपको मिल चुका है, वो आपको मेंशन करना है. The work experience involved working in a team. Like आपने एक टीम में वर्क किया है, आपको एक प्लानिंग दिया गया था, आप you were in an organization, you were a leader, you were under a leadership. And you are responsible for a team of people. So all these things they make a CV more effective. Keep your CV updated. Or last but not the least thing, you should always keep your CV updated. क्योंकि आपको पता है कि time by time आप भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं. You are attending seminars, you are increasing your skill,
you are doing new courses, online or offline courses. So you have to mention all your those things on regular basis. आपको अपने CV में update करते रहना चाहिए. And the important thing is the correct spelling. स्पेलिंग आपको प्रॉपरली चेक कर लेनी चाहिए. अगर आपको किसी स्पेलिंग में कोई इश्यू लगता है तो जस्ट रिफर एनी ब्राउजर, वहां पे जाके आप प्रॉपरली उसको चेक कर सकते हैं. और ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर इश्यू लगता है तो अगेन यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ someone who is professional and someone who can guide you better. So now we will see the bad CV. This is a bad CV example. See, it is written CV, the name, all the personal information is given, all these things. I'm hardworking individual, enjoys working, I'm excellent and meeting deadlines, all these things. Then इसमें achievement mention किया है, then उसने education mention किया है अपना year wise, फिर उसके बाद उसने college का नाम mention कर दिया है. Then अभी सिर्फ ड्यूरेशन किया था, फिर देन बुलेट्स में इसने मेंशन किया. फिर एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में अगेन ईयर वाइज उसने मेंशन किया है. सी हाउ दिस थिंग, स्पेसिंग का इशू है यहाँ पे एंड प्रॉपरली मेंशन नहीं किया. जैसे आईटी एडमिन डाना कॉर्पोरेशन, सो दिस शुड बी रिटन प्रॉपरली. सो ऑल दिस थिंग्स एंड आप ये देख सकते हो ये सीक्वेंस में भी नहीं है. 2011 टू प्रेजेंट कर दिया, 2008 से 11. तो आपको सीक्वेंस में करना. अगर आपने स्टार्ट किया है 2010 से या 2005 से अपना करियर या अपना जॉब स्टार्ट किया है तो आपको वहां से मेंशन करना है. एंड लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में जो आना चाहिए ईयर वो होना चाहिए यहाँ से प्रेजेंट तक. ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट हम पहले, या तो आप वो वाला ऑर्डर फॉलो करिए, प्रेजेंट पहले रखिए और जो स्टार्टिंग वाला था वो लास्ट में रखिए, और वाइस वर्सा. बट इट शुड नॉट बी हैफर्ड कि कभी भी कुछ भी बीच में मेंशन कर दिया. देन क्वालिफिकेशंस में 2004 टू 2007 बीएससी साइकोलॉजी. दिस इज वेरी वेग वे, मतलब बहुत अच्छा तरीका नहीं है लिखने का. स्किल्स में आप लिखा है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट मैनेजमेंट, ग्रेट आईटी स्किल्स. सो व्हाट आर ग्रेट आईटी स्किल्स, कौन सी ग्रेट आईटी स्किल्स हैं इसके अंदर, ये मार्क टेलर ने मेंशन नहीं की है. This is just an example that I have took from internet just to explain you what is the difference. आपको समझाने के लिए कि bad CV और good CV में क्या difference है. Then coming to hobbies and interests. Hobbies mention किया, enjoy skiing, hiking, football, eating out with my friends, watching, going to church on Sundays. So these are very vague, बहुत ही अनकॉमन सी हॉबीज, मतलब अनकॉमन, और ये ऐसी हॉबीज है जो आपको मेंशन नहीं करनी है क्योंकि इसका कोई उस जॉब से रिलेशन नहीं है जो आपको यहाँ पे हॉबीज एंड इंटरेस्ट मेंशन कर रहे हैं. ओके, सो अब हम ये देखेंगे कि इस सीवी में इनएफेक्टिव क्या है, जिस ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने इस सीवी को इनएफेक्टिव बनाई है. एट फर्स्ट ग्लांस दिस सीवी एग्जाम्पल लुक्स वेरी जेनरिक, बोरिंग, क्योंकि बहुत डल है, बोरिंग है. इसमें आप फॉन्ट देख रहे हैं, यहाँ पे कोई और फॉन्ट यूज हुआ है, यहाँ पे कोई और फॉन्ट यूज है, तो मिक्स एंड मैच है फॉन्ट का, वो नहीं होना चाहिए. बहुत ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्रॉपरली बैड स्ट्रक्चर है, या अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है. यहाँ देखिए ये अंदर चला गया बुलेट्स वाले, ये ऑर्डर में नहीं है एम्प्लॉयमेंट का सीक्वेंस. ठीक है, बहुत सारे आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, ये तो इररेलेवेंट में आता है जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है हॉबीज और इसमें मेंशन करने के लिए. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अब हमें क्लियर हो गए कि एक बैड सीवी में क्या है. नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ अ गुड सीवी. गुड सीवी, सी क्या एग्जांपल हमें क्या डिफरेंस लग रहा है पुराने जो बैड सीवी था और इस वाले सीवी में, कि सबसे पहला कि ये फॉर्मेटिंग इज वेरी गुड. सी द alignment, see the bullets, see the way of doing the and underlining, see the color combination, see the information, जो भी relevant information है सिर्फ वो दी गई है. जो इसमें टेक्स्ट है वो भी प्रॉपर यूज हुआ है. ठीक है, साइज छोटा बड़ा नहीं है, जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट की वो दी गई है. अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जून 2008 टू प्रेजेंट में मेंशन किया गया है कि उसको उस एम्प्लॉयमेंट
एरिया ड्यूरेशन में उसको क्या क्या वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। वो आपका एक एम्प्लॉयर जो है वो जानना चाहता है, एम्प्लॉय। सो दिस यू हैव टू सी कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देन स्किल्स में आप देखोगे तो प्रोफेशनल, इसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स मेंशन की है कि उसे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आती है, या अदर स्किल्स जो कि इम्पोर्टेंट है एंड दैट आर रेलिवेंट। फाइन, सो दिस इज हाउ विल सी वी। हमने देखा कि एक इफेक्टिव सीवी क्या होता है। इट हैज अ ग्रेट फॉर्मेट, बुलेट पॉइंट्स हैं, शॉर्टर सेंटेंसेस हैं, क्रिस्प एंड एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन यूज की गई है, कलर भी बहुत मिनिमम यूज किया है, एंड दिस ईमेल एंड मोबाइल नंबर प्लीज जो भी आप मेंशन करते हैं दैट शुड बी वर्किंग, और ईमेल आईडी वो ही देनी चाहिए जो आप एक्सेस करते हैं हमेशा, ना कि किसी और की, ना ब्रदर की, ना फादर की, ना किसी भी रिलेटिव की नहीं देनी है। आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी देनी है जो आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज दिस ईमेल आईडी आपकी जब जॉब आप फाइनल हो जाती है तो वो ईमेल आईडी आपकी कंटिन्यू होती है। बट यस यू कैन चेंज इट, बट स्टिल दैट ईमेल आईडी वो वाली ईमेल आईडी यूज करनी चाहिए जो आप हमेशा एक्सेसिबल हो। सो एंड अगेन जो भी सीवी है दैट शुड बी अपडेटेड टू द डेट, वो सीवी आपको हमेशा अपडेट करती रहनी चाहिए। So thank you so much. Thank you guys. Today we have learned so much about counseling, mentoring, grievance, SWOT and CV. CV आपको कैसे बनाना है वो भी हमने देखा, and now you know how to make a good CV. Now you can ask your questions. Now you can ask your questions. Ma'am, do you want me to put everybody on unmute? Yeah, please do it. I finished with my presentation. Ma'am, it will be a lot of chaos if okay तो with आई वुड रिक्वेस्ट जो भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, अगर आपको कोई इशू है तो आप इंडिविजुअली अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक्चुअली वो इंडिविजुअल वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने उनको फोर्स म्यूट पे डाला है। वो तो मैम आपको इंडिविजुअल वाले पे आप एक बार करके देखेंगे? अच्छा, मैं ये जिसने हाथ खड़े करे इनको कर देती हूँ। हाँ ठीक है। कोमल, कोमल, देखिए मैडम, नो क्वेश्चन, मैं इनको म्यूट पे डाल के दूसरे को कर रही हूँ। ठीक है। रेडमी ये कुछ आया है इनका, एनी क्वेश्चन? नहीं है इनका भी। चैट विंडो पे कोई आ रहे हैं मैडम आपको? हाँ मैम चैट विंडो, बट वो दिख नहीं रहा है कि वो ना एक्सपैंड नहीं हो रहा है इसमें। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू कि क्या है। नहीं, इसमें एक ऑप्शन है मोर का, आप लैपटॉप से कर रहे हो ना? सॉरी, लैपटॉप से कर रहे हो, इसमें मोर पे क्लिक करिए। मोर पे हाँ मैम क्लिक किया है। उसपे चैट पे करिए। हाँ चैट पे किया। ओके तो चैट विंडो खुल जाएगी अब। अच्छा राइट। नाउ सी एनी क्वेश्चंस दे हैव। मैम बीना शर्मा को अनम्यूट करिएगा। बीना शर्मा का आया है अनम्यूट। विनय शर्मा।
कर दिया मैडम। विनय शर्मा। हेलो हेलो मैडम। या विनय शर्मा। मैडम सॉर्ट का बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, सॉर्ट है बेसिकली वर्ड है, सॉर्ट जो कि 4 वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, SWOT। ठीक है। एस में आता है स्ट्रेंथ। एस का मतलब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में वो चीज होती है जो आपकी कैपेबिलिटीज है, आपकी जो प्लस पॉइंट्स है, आपको जो लगता है आपके अंदर जो बहुत अच्छाइयां हैं, है ना, जो पर्सनल लेवल पे जाए तो आपकी स्किल्स हो सकती हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपको किसी लैंग्वेज में कमांड है, वो स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ का पार्ट बनेंगी अगर आप एक पर्सनल स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो। ठीक है। डब्ल्यू में आता है वीकनेस। अगर पर्सनल वीकनेस में जाएं तो अगर आपको किसी लैंग्वेज में कमांड नहीं है या आपकी फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कमांड नहीं या किसी हिंदी में कमांड नहीं या एनी अदर लैंग्वेज या कोई भी टास्क है उस पर कमांड नहीं है, तो दैट कम्स अंडर योर वीकनेस। ठीक है। एंड ओ इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है जिसमें वो सारे पॉइंट्स आते हैं, वो सारे कीवर्ड्स आते हैं जिसको आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में जाके, तो दैट कम्स अंडर योर अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट्स आते हैं जो कि आपको लगता है कि कोई और उसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, तो वो आपकी थ्रेट्स में आ जाएंगे। क्लियर? ओके। बट दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए वो चीज अच्छी नहीं है, बट वो आपके अंदर है, तो वो आपको उससे नुकसान कभी भी पहुंच सकता है या किसी और को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो थ्रेट्स में काउंट होगा। जी आई मैम। होप आई एम क्लियर। मैंने क्लियर किया है। अगर फिर भी कोई डाउट ओके मैम। ओके 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 मैम। ओके। थैंक यू सो मच विनय। मैम एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, जस्ट 1 मिनट मैम। भावना अग्रवाल। आकाश सिंह मैम, आकाश सिंह। कर रही हूँ मैडम। गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून आकाश। मैम एक्चुअली मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, उसमें मुझे ये जानना है कि बायोडेटा, सीवी और रिज्यूम में डिफरेंट क्या है? ओके, बायोडेटा इज द वर्ड वो जो कॉमन वर्ड नहीं है, बट सीवी इज अ प्रोफेशनल वर्ड जो हम यूज करते हैं। ठीक है। बायोडेटा में जनरली जो अगर हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम बायोडेटा वर्ड नहीं यूज करेंगे और बायोडेटा फॉर्मेट में नहीं देंगे। ठीक है। तो अगर हम जॉब के लिए करें तो हमें सीवी ही मेंशन करना है और उसी जो मैंने सीवी का फॉर्मेट आपको बताया ना, उस तरीके से ही चीजें लिखनी है उसमें। बायोडेटा इज फॉर समथिंग सम अदर थिंग अदर देन जॉब। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हम अपनी क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन या अपने पर्सनल या अपना बैकग्राउंड कुछ बताना चाहते हैं, तो वो बायोडेटा के फॉर्म में हम देते हैं। ओके मैम। ठीक है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी मैरिज के लिए आगे प्रपोजल देते हैं तो वहां पे हम अपना सीवी नहीं देंगे, वहां पे हम अपना बायोडेटा देंगे। अब थोड़ा सा आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। यस। ठीक है। तो वहां पे हम बायोडेटा देते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे फैमिली के बारे में मेंशन होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे पर्सनल चीजें होती है जो हम उसमें मेंशन करते हैं। क्लियर? ओके मैम। यस। थैंक यू आकाश। थैंक यू मैम, एंड थैंक्स फॉर द लेक्चर मैम। Oh, thank you so much. How was the lecture? वेरी गुड मैडम, आई कैन वाउच फॉर मैम इट। ये दोनों लाइक है, अगर तीसरा होता तो तीसरा भी देता। Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम। Thank you. मैम एक्चुअली पीपीटी मिल जाएगा क्या मैम हमें? PPT मैं कैसे दूं? आप कहाँ से हैं? मैम मैं कानपुर NSTI। NSTI कानपुर। यस ओके। मैम। मैं अभी नंबर तो नहीं शेयर कर सकती हूँ। मैं एक बार आप मैम कैसे PPT शेयर होगी? मैम एक्चुअली इसी मोड पे शायद देखिए सेंड हो रही है क्या, या हाँ, इनका ले लीजिए, आप इनको ईमेल कर सकते हैं इनको।
आप मेरा ईमेल आईडी ले लीजिए, ऑफिशियल ईमेल आईडी। यस मैम। या फिर ऑफिशियल चैट कर दीजिए अगर मैम लेकिन आप मुझे मैसेज ऐसे आप देंगे या फिर मैसेज करोगे आप मैम? सॉरी मैम आप ऐसे ईमेल आईडी बोलेंगे आप? ओके बोलिए मैम। नहीं, आपको मैं पर्सनल इस पे मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? हाँ प्राइवेट मैसेज हो जाएगा मैडम, इस पे आप उनको दे दीजिए ईमेल आईडी। हाँ एक सेकेंड मैम, वो अभी होगा ना, मतलब बाद में तो नहीं होगा ना? और मैं अगर एंड कर दी मीटिंग तो फिर नहीं हो पाएगा, अभी प्राइवेटली हो हाँ जाएगा। मैम एक सेकेंड बस मैं कर देती हूँ ना। हम्म। ओके मैम। आकाश देख रही है। आकाश आई हैव सेंड यू माय ईमेल आईडी, आप चेक कर लीजिए, ठीक है? ओके मैम। एंड विकास राजपूत, 1 second मैम, मैम गो अहेड विकास। विकास यस मैम। या है विकास, टेल मी। मैम मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उनका मेरे को पता नहीं लग रहा है। अच्छा तो तो आप आप पूछिए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है ये, हाँ डैश आर नेचुरल एंड इनबोर्न रिस्पॉन्स। आप मुझे एक प्राइवेट मैसेज में आप उसे करके भेज दो, मैं अभी देख के आपको बता देती हूँ। ठीक है मैं फिर मेल करूँ, मैं आपको क्या करूँ? हाँ मैं मेल आईडी शेयर कर लेती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। Thank आप you, मुझे thank जो भी you, क्वेरीज thank है आप मुझे भेज दीजिए, आई विल रिवर्ट यू, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके। What was this question, madam? I really would like to understand. I was not also clear, so it's a kind of fill in the blanks. विकास एक बार जी, दोबारा जी। पूछ के देखो, इसी पे चैट विंडो, इसी पे। फिलिंग द ब्लैंक्स है डैश आर दी नेचुरल एंड इनबोर्न रिस्पॉन्स। ऑप्शन 1 है हैबिट, इंस्टिंक्ट, एटीट्यूड, अप्रोच। Just hold on, I'll write it. Dash are the नेचुरल एंड इनबोर्न रिस्पॉन्स। natural and inborn रिस्पॉन्स response, ठीक है? जी। ऑप्शंस है हैबिट, हैबिट, सेकंड ऑप्शन है इंस्टिंक्ट, instinct, हाँ जी, थर्ड एटीट्यूड, attitude, फोर्थ वन अप्रोच। habit is not natural, attitude is also not a natural. I think instinct. मैम एक्चुअली मेरे को भी पता नहीं है इसका राइट आंसर। देखिए there are some- लॉजिकली अगर मैं देखूं, ये बोल रहा है जी आर द नेचुरल एंड इनबॉर्न, ठीक है? हैबिट जी। होती है जो हमारी जो हम डेली उसमें करते रहते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती है, ठीक है? वो इनबॉर्न और नेचुरल जरूरी नहीं है हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें देख के भी सीखते हैं और अपनी हैबिट में लाते हैं, करेक्ट? जी हैबिट मैम देर आर 50। मैम मेरे पास 50 क्वेश्चन है ऐसे ना, फिर इनको आप सोल्व कर दें, बड़ा मेहरबानी। बट किसी ने उत्कर्ष सांडिलिया ने इसमें मुझे बोला है कि नो हैबिट इज करेक्ट, बट आई हैव टू चेक दिस बिकॉज हैबिट इज समथिंग जो ठीक है, नेचुरल कुछ हैबिट्स होती हैं, बट देयर दिस इनबॉर्न रिस्पॉन्स। आई विल चेक, ओके? जी I'm Can not you really sorry. elaborate on the question? I'm really, curious to understand what his question is. Ma'am, question is dash are the natural and inborn response. You have to fill in the blanks. Okay. So जी options are habit, instinct, attitude, and approach. Okay. Yeah. Now, natural to something which is habits, instinctive बन रहा है मैडम इसका। Yes, ma'am. Because habit are not some हाँ. habits are natural. Yes, of course.
but instinct is the answer. बिकॉज बाकी सारे वेरिएबल्स चेंजेबल होते हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल. नेचुरल में तो नहीं आते हैं वो. yes that is what attitude obviously जैसा हमारा attitude होता है टाइम के बाद चेंज हो जाता है. Change अप्रोच होता है, हम अपने हर टास्क के लिए डिफरेंट अप्रोच लेते हैं. ठीक है. हैबिट भी चेंज होता है बट इंस्टिंक्ट इज समथिंग जो अंदर से होता है जो अंदर सेटअप होता है. so that is the natural thing. It's very natural, yeah. yeah instinct is the answer. okay Vikas. थैंक यू मैम. okay मैम आपने मेल आईडी कर दी सेंड अपनी? हाँ ठीक. okay any other questions? क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन है पर ऐसे नहीं आप मुझे शेयर कर लीजिएगा. ठीक है. मेल पे शेयर कर दूंगा आपको. right okay विकास. थैंक यू. Madam, the lecture was excellent. Can I, request for more such lectures, matlab on different topics? yeah I'm doing it. I started. I have done मतलब 2 मैं और कर चुकी हूँ बट उसमें मुझे निमी से वो नहीं मिला था लाइक स्लॉट नहीं अवेलेबल था तो मैंने ऐसे इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को सेंड करके लेक्चर दिया था. मैम आप एक्चुअली आई वुड लाइक टू सेट इट अप. तो एक आपका सेटअप है अभी 1-2 दिन के अंदर शायद आपने जो भेजा है वो मेरे को मेरा परसों है एक और आर्किटेक्चर पे है. हाँ तो वो उसके जैसे अभी तो परसों है ना जैसे मैडम लॉकडाउन पीरियड तक वी रियली विश इज इट पॉसिबल सिंस इट्स ओनली थियरी पॉसिबल है कि रोज हम 1 घंटा बच्चों के साथ लेक्चर कर लें आपके. आई मीन योर्स इज लाइक ग्रेट. तो आई रियली वांट टू आई वांट कि बच्चों को रियली मतलब ये मिल जाए यूटिलाइज कर लें टाइम. नो प्रॉब्लम बट इशू इज विद द टाइमिंग. अगर वो 7 से 8 वाला टाइमिंग अगर हो तो इट्स अवेलेबल मैडम. हम हमारे यहाँ 7 से 8 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अवेलेबल है टाइमिंग. तब तो ठीक है. या तो एवरीडे अगर 1 घंटा आप पढ़ा देंगे तो मैम बहुत बहुत हेल्प मिल जाएगी बिकॉज हिंदी इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स. राइट दैट इज व्हाई मैं दोनों लैंग्वेज मिक्स करके यूज करती हूँ कि जिसको जिसमें कंफर्टेबल होता And है. the way you delivered and the content also, I think it was just great. So थैंक यू सो मच. अब मेरे को इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मैम? रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मैडम. हमारे रिकॉर्डिंग हो रही है. I'll ask my senior official and maybe towards the like end जैसे 14 को जैसे अगर लॉकडाउन खत्म होते तो 14 तक मतलब maybe we can give you all the recordings in one go. Okay. So check with my senior on this. Okay, no problem. मैडम आप I really want कि आप रोज 1 घंटे का लेक्चर आप दे दीजिए. Sure. But 7 to 8. But I started after 9th because I have to make presentations. You can understand, na? So. हाँ तो today is 9th. Oh sorry. After 11th. After From 11th. Monday onwards. From Monday onwards, please. Monday onwards. Okay, so Monday then we don't have too many days in hand. Monday. How? 13th है. 13th is Monday. अच्छा ठीक है तो सैटरडे को है मेरा लेक्चर तो संडे मंडे चलेगा. ठीक है. अच्छा ठीक है तो संडे को आई वेट फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम दिस. हाँ 7 to 8 कर दीजिए बट टॉपिक आई विल शेयर विद यू ना. ठीक है. हाँ that you can share it. Just let me know. You have my number. Maybe you can just give a call back and tell me कि registration form हो गया. Instantly book करके आपको confirm कर दूंगी. अच्छा ठीक है fine. I'll do that. You have my number ना मैम? Let me check. You have called me but I have not saved. Okay, so let me message you privately. One second. Fine, All the fine. others can actually leave actually, yeah. You have my number. Yeah, I think I have your number. So just WhatsApp me or ping me on that number. Okay. I'll do it, ma'am. Fine. Any other question or queries waiting? I think. All those students who are from my institute and the trade which I am teaching, आप मुझे WhatsApp पे आप सब बच्चे हैं मेरे तो आप प्लीज उस पे क्वेश्चंस पूछ लीजिए मुझसे. ठीक है. और जो भी पीपीटी है वो मैंने गूगल क्लासरूम में भी शेयर की है और नो आई हैव नॉट शेयर्ड. आई विल शेयर इट. तो गूगल क्लासरूम में भी एक्सेस करके आप वो पीपीटी ले सकते हैं. ठीक है. एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट. क्लियर? Okay, ma'am. Shall I wait more or like? नहीं मैम हो गया मैम. हो गया? Yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much, everybody. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you. Okay, bye. Bye. Bye.